بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بالآخر آج دنیا میں ایک بڑا انکشاف ہوا ہے اور ایک غیر معمولی خبر نے سب کو چونکا دیا ہے۔ معروف عالمی تحقیقاتی ادارہ بلوم برگ نے بھارتی جنرل انیل چوہان کے متعلق ایک ایسی رپورٹ جاری کی ہے جس نے بھارتی اسٹیبلشمنٹ کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ انیل چوہان جو بھارتی فوج کے 4 اسٹار جنرل ہیں اور اس وقت انڈیا کے دوسرے چیف آف ڈیفنس اسٹاف یعنی SDS کے طور پر خدمت انجام دے رہے ہیں، ان کے حوالے سے پہلی بار سرکاری سطح پر اعتراف کیا گیا ہے کہ بھارت کے رافیل لڑاکا طیارے واقعی گرائے گئے تھے اور یہ کام پاکستان نے کیا تھا۔ یہ ایک ایسا انکشاف ہے جو بھارتی حکومت اپنی ہٹ دھرمی سے جھٹلاتی آئی ہے۔ اب جب کہ دنیا کے ایک معتبر ترین ادارے نے اس پر تحقیق کے بعد رپورٹ دی ہے تو معاملہ دبا نہیں رہ سکتا۔ اب ایک نئی بحث کا آغاز ہو چکا ہے کہ آخر کتنے طیارے گرے تھے، کس نے گرائے تھے اور کیوں گرے تھے۔ بھارت نے برسوں دعویٰ کیا کہ ہمارے صرف ایک طیارہ MiG 21 کو نقصان پہنچا، جبکہ پاکستان نے کئی مرتبہ کہا کہ ہم نے ایک نہیں بلکہ کئی طیارے گرائے تھے۔ اب جبکہ خود بھارت کا اعلیٰ ترین عسکری افسر جنرل انیل چوہان اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ ہاں ہمارے طیارے گرے تھے، تو اب اس سچ کو جھٹلانا ممکن نہیں رہا۔ اس پوری صورتحال میں اب وہ پرانی کہانیاں پھر سے گردش کرنے لگی ہیں جو اس وقت دبائی گئی تھیں، جن میں سب سے اہم اور پر اسرار نام ہے بھارتی خاتون پائلٹ شیوانگی سنگھ کا۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ بلوم برگ کی رپورٹ میں اصل معاملہ کیا اٹھایا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق جب پاکستان نے کہا کہ اس نے 6 بھارتی طیارے مار گرائے ہیں تو بھارت نے اس دعوے کو جھوٹ قرار دیا ہے، مگر اب پتہ یہ چلا ہے کہ طیارے واقعی گرے تھے اور گرنے کی وجوہات بھی سامنے آ رہی ہیں۔ اصل مسئلہ یہ کہ فرانس کی ایئر کرافٹ کمپنی جس نے بھارت کو رافیل طیارے دیے تھے، ان کی آڈٹ ٹیم نے ایک ایسی تحقیقاتی رپورٹ تیار کی ہے جس میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ جو رافیل طیارے بھارت میں حادثے کا شکار ہوئے یا گرائے گئے، ان میں کسی قسم کی تکنیکی خرابی نہیں تھی بلکہ پائلٹس کی غلطی تھی، کیونکہ بھارتی پائلٹس ہیں ہی نکمے اور ناکارہ۔ ان کا وزیر اعظم مودی بھی اپنے سینے پر ہاتھ مار کر کہتا کاش ہمارے پاس رافیل ہوتے تو معاملہ کچھ اور ہوتا۔ اب تو رافیل طیارے بھی آپ کے پاس تھے، یہ پڑے ہیں آپ کے رافیل اور یہ پڑا ہے آپ کا S-400۔ فرانس نے یہ رپورٹ اس لیے بنائی تاکہ بھارت اگر رافیل طیاروں کے نقصان کا الزام کمپنی پر ڈالے تو وہ اپنی صفائی میں کہہ سکیں کہ ہمارا کوئی قصور نہیں۔ یہ بھارتی پائلٹس کی نالائکی تھی۔ فرانسیسی رپورٹ میں یہ تجویز بھی دی گئی ہے کہ اگر بھارت چاہے تو وہ دنیا کو یہ کہہ سکتا ہے کہ چلیں 3 طیارے ہم مان لیتے ہیں، باقی کسی اور ملک کی مشقوں میں تباہ ہوئے یا غلطی سے گر گئے تاکہ کچھ لاج بچ سکے۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ ان طیاروں کے گرنے کے ناقابل تردید شواہد سامنے آ چکے ہیں اور فرانسیسی ادارے نے اپنی رپورٹ تمام بین الاقوامی فورمز پر پیش کرنے کی بھرپور تیاری کر لی ہے تاکہ وہ کمپنی کی ساکھ بچا سکیں۔ یہ رپورٹ صرف ایک فوجی معاملہ نہیں بلکہ اربوں ڈالر کی دفاعی تجارت، سیاسی مفادات اور بین الاقوامی ساکھ کا مسئلہ ہے۔ ادھر بھارت کی حکومت اب شدید دباؤ میں ہے کہ وہ اپنے عوام کو کیا جواب دیں۔ جنرل انیل چوہان نے اس رپورٹ کے بعد دبے الفاظ میں سچ تسلیم کر لیا تاکہ بین الاقوامی شرمندگی سے بچا جا سکے، لیکن اب عوام اور میڈیا کے سوالات بڑھتے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اگر طیارے گرے تھے تو کتنے گرے تھے؟ دوسرا یہ کہ اگر بھارت کا دعویٰ ہے کہ پاکستان نے کوئی طیارے نہیں گرائے، اب تو سچ آپ کے جنرل انیل چوہان سامنے لے آئے ہیں۔ اور رہی بات شیوانگی سنگھ کی تو وہ کہاں ہے، ماری گئی ہے یا زخمی ہے یا وہ پاکستان کی تحویل میں ہے؟ بھارتی عوام اس طرح کے سوالات اٹھا رہے ہیں۔ شیوانگی سنگھ کا جب طیارہ ہٹ ہوا تو پاکستان کے سوشل میڈیا مختلف ویڈیوز آنا شروع ہو گئی تھیں، وہ فیک تھیں یا ریئل کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو پاکستانی سرحدی علاقوں کے کئی لوگوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نے ایک خاتون پائلٹ کو دیکھا جو زخمی حالت میں گر کر پاکستانی فوج کے قبضے میں آ گئی تھی۔ پاکستان نے اس کی تردید کی۔ ممکن ہے اس کے پیچھے کئی سفارتی وجوہات ہوں، مگر اب وقت آ چکا ہے کہ وہ تمام حقائق منظر عام پر لائے جائیں۔ جب خود بھارت کے سپریم کورٹ کے وکیلوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہاں ہمارے طیارے گرائے گئے تھے اور وہ بھی پاکستان نے گرائے تھے۔ ان وکیلوں میں سے پہلا نام سبرامنیم سوامی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ 5 طیارے گرے تھے تو پھر سچائی چھپ نہیں سکتی۔ اب بھارتی عوام بھی سوال کر رہے ہیں کہ اگر 5 طیارے گرے تھے تو پھر ان میں
कौन कौन सा पायलट शामिल था। और अब सबसे अहम बात, अगर शिवांगी सिंह इस वक्त पाकिस्तान के कब्जे में नहीं है तो कहाँ है, क्यों मंजरे आम पर नहीं आ रही, क्यों नहीं बताया जा रहा कि वो जिंदा है या नहीं। इस तरह के सवालात अब तेजी से सोशल मीडिया, आलमी रिपोर्ट्स और अवामी हलकों में गर्दिश कर रहे हैं। ये अब कोई साजिशी थ्योरी नहीं रही, ये अब रिकॉर्ड पर मौजूद एतराफ, शवाहिद और रिपोर्ट्स का मजमुआ बन चुकी है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट, फ्रांस की तहकीकाती टीम की ऑडिट रिपोर्ट, भारतीय अदालती शख्सियात के बयानात और अवामी दबाव अब मिलकर एक नए तूफान को जन्म दे चुके हैं, जिससे भारत के लिए इनकार की गुंजाइश खत्म होती जा रही है। अब जब आप खुद ये कह रहे हैं कि शिवांगी सिंह काम पर हैं, तो सवाल ये है कि आप इसे अब तक सामने क्यों नहीं लाए। अगर वो वाकई भारतीय फिजाइया की वो वाहिद खातून पायलट है जो राफेल जैसे जंगी त्यारे उड़ाने के लिए खास तौर पर फ्रांस से तरबियत याफ्ता है, तो आपको अब इसकी मौजूदगी और किरदार को बिल्कुल वाजे करना पड़ेगा। या तो आप इसका इंटरव्यू जारी करें या कम अज कम इसकी कोई ताज़ा वीडियो ही सामने लाएं, जिसमें वो खुद ये कहे कि हाँ, मैं उस दिन वहाँ जरूर थी, हम तैयार थे, हमारे पास मुतबादिल मंसूबा था, पाकिस्तान ने ये किया या वो किया, लेकिन हम मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार थे। ये बात जानते हैं कि राफेल त्यारे भारत के पास चंद ही हैं और इन्हें उड़ाने वाले तरबियत याफ्ता पायलट भी उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। ऐसे में अगर भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये एतराफ करते हैं कि हमारे कुछ त्यारे गिरे थे, तो इसका मतलब साफ और साफ यही बनता है कि इन त्यारों में शिवांगी सिंह भी शामिल थी। अब ये तय करना भारत की जिम्मेदारी है कि वो किस मरहले पर थी। या तो वो इन त्यारों में थी जो इस वक्त गिराए गए, या वो उन नए त्यारों में शामिल थी जो फौरी तौर पर मुतबादिल के तौर पर तैयार किए गए थे, कि जो चंद ही पायलट हैं इनमें से कोई न कोई दोबारा भेजा गया होगा और इनमें शिवांगी सिंह यकीनन शामिल रही होगी। अब दो ही सूरतें बचती हैं, या तो वो मारी जा चुकी हैं या फिर इतनी शदीद जख्मी हैं और इसकी हालत ऐसी है कि अभी तक मंजरे आम पर नहीं लाया जा सका। लेकिन भारत की हुकूमत और फौज इस मामले पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार किए हुए है और यही खामोशी अब सबसे बड़ी गवाही बनती जा रही है। अगर फ्रांस के इदारे सामने आकर रिपोर्ट शाये कर दें जैसे कि इनकी टीम तैयार बैठी है और वो इस बात का ऐलान कर देंगे कि हाँ, भारत के पायलटों की गलती से त्यारे तबाह हुए और कुछ पायलट लापता या शदीद जख्मी हुए, तो फिर भारत के लिए कुछ भी छुपाना मुमकिन नहीं रहेगा। अब आपको शायद समझ आ गई होगी कि अल जजीरा की वो खातून रिपोर्टर जो उस वक्त सबसे पहले कह रही थी कि भारतीय पायलट पाकिस्तान के पास हैं, वो झूठ नहीं बोल रही थी। उसने वाज़ेह तौर पर कहा था कि एक भारतीय खातून पायलट पाकिस्तान में मौजूद है और बाद में जब इनकार किया गया तो वो इनकार रस्मी था, वरना इसके जराए बड़े मजबूत और मोतबर थे। अब जबकि ये मामला इतना आगे जा चुका है तो भारत को आखिरकार आवाम को सच बताना ही पड़ेगा कि शिवांगी सिंह के साथ हुआ क्या है। अगर वो वाकई शदीद जख्मी है तो कम अज कम इतना तो बता दें ताकि कयास आराइयों का खात्मा हो, क्योंकि ऐसे जख्म जिनमें जिस्म को मिसाइल लग जाए कभी कभार ऐसे होते हैं जिनसे सेहत याब होने में सालों लग जाते हैं। वो सदमा, वो तकलीफ, वो दबाव इंसान को महीनों खामोश रहने पर मजबूर कर देता है। अगर भारत 6 माह या 1 साल बाद शिवांगी सिंह को सामने लाता है तो ये मान लिया जाएगा कि वो वाकई जख्मी थी और तवील इलाज के बाद बहाल हुई है। अगर आपने अब भी कुछ नहीं दिखाया तो लोग यही समझेंगे कि वो जिंदा ही नहीं है, और अगर कभी कोई इसे जिंदा देख भी ले तो सवाल यही करेगा कि आखिर आपने इसे इतना अरसा क्यों छुपाए रखा। हकीकत यही है कि भारत के 5 पायलट इस वक्त मैदान में गए थे और अब खुद आपके आला तरीन दिफाई अफसर ने तस्लीम कर लिया है कि त्यारे वाकई गिरे थे। तो फिर सवाल यही है कि वो त्यारे अगर गिरे तो इनके अंदर मौजूद पायलट कहाँ हैं। फ्रांस की तहकीकाती टीम तो यही कह रही है कि हमें इजाजत दी जाए, हम इन पायलटों का मुआयना करना चाहते हैं, इनके बयानात और हादसात का तज्जिया करना चाहते हैं, वरना हम अपनी रिपोर्ट जारी कर देंगे। अब अगर भारत फिर भी खामोश रहा तो फ्रांस वो रिपोर्ट खुद जारी करेगा जिसमें भारत के पायलटों की तरबियत, त्यारों की परवाजों और हादसात के पूरे रिकॉर्ड होंगे। भारत की कोशिश यही है कि दुनिया को किसी तरह ये समझा दिया जाए कि त्यारे गिरना कोई अनोखी बात नहीं, लड़ाई में ऐसे हादसात हो ही जाते हैं और हमने फौरी तौर पर नए त्यारे भी फिजा में भेज दिए थे। मगर अब दुनिया सवाल करती जा रही है कि जिन पायलटों को आपने तरबियत दी थी, जिन्हें फ्रांस से खुसूसी हिदायत के तहत मुंतखब किया था, और वो पायलट कहाँ हैं? इनमें शिवांगी सिंह भी शामिल थी। अब आप इसे दुनिया के सामने क्यों नहीं ला रहे? देखिए, जंगों में नुकसान तो होता ही है, और जब आपने हमारे मुल्क के अंदर आकर मिसाइल मारे तो क्या यहाँ तबाही नहीं हुई थी? वो सब मनाजिर पूरी दुनिया ने देखे। हमने इनकार नहीं किया बल्कि माना कि वाकई नुकसान हुआ है। हमने एतराफ किया कि कुछ मिसाइल रोके जा सके और कुछ नहीं। आपने हमारे मुल्क में ड्रोन्स भेजे
जिनके बारे में हमने अपनी गलतियां तस्लीम की, जहां कमजोरियां थीं हमने खुलकर बात की। लेकिन सवाल ये है कि आपने अपनी तरफ की हकीकत पहले दिन से क्यों नहीं बताई? अब जबकि असल कहानी खुलने लगी है तो शिवानगी सिंह का किरदार भी बहुत वाज़ेह होता जा रहा है। आपको बताना होगा कि शिवानगी सिंह के साथ क्या हुआ, क्या वो जख्मी है, क्या वो मारी गई है। आपने खुद ही तस्लीम किया है कि कुछ पायलट मौजूद नहीं हैं। अगर शिवानगी इतनी अहम थी तो फिर वो कहाँ है? बाकी पायलट्स कहाँ हैं अगर मारे गए या जख्मी हुए? तो ये बात वाजे क्यों नहीं की जा रही? अब ये सच्चाई छुपी नहीं रह सकती। मसला ये है कि आपकी हुकूमत या इदारे रिपोर्ट के सामने आने से घबरा रहे हैं, क्योंकि इससे सच खुल जाएगा। फ्रांस की टीम ने कहा कि हमें मुकम्मल रसाई दी जाए ताकि हम जायजा ले सकें कि राफेल तैयारों में वाकई खराबी थी या नहीं, लेकिन आपने इनकार कर दिया। फ्रांस पीछे नहीं हटेगा। दुनिया में अगर कोई गाड़ी खराब हो तो इसकी कंपनी इसे पूरी दुनिया से वापस बुलाती है, मुफ्त में ठीक करके देती है। अब अगर राफेल तैयारों में कोई खराबी है तो फ्रांस इनको वापस मंगवाएगा, क्योंकि वो खुद भी इन्हें इस्तेमाल करता है और कई दूसरे मुमालिक को भी बेच चुका है। अब मसला ये है कि अब आपके पास कोई बहाना नहीं। आपका वो गुरूर, वो प्रोपेगेंडा के राफेल तैयारे सबसे बेहतरीन हैं, अब जमीन बोस हो चुका है। सच्चाई ये है कि आपके तैयारे गिरे और आपके हालात काबू से बाहर हो गए। अब आपको शिवानगी सिंह का भी जवाब देना होगा कि वो किस हाल में है। साथ ही आपको ये भी बताना होगा कि तैयारे आखिर गिरे कैसे। हमारे पास तो इनकी उड़ान की आवाजें तक मौजूद हैं। हमने वो ऑडियो भी सुनी है जिसमें आपकी फिजाइया बेबसी से बात कर रही थी। चीन ने हमें वो सब कुछ दे दिया था जिससे हमें पहले से पता था कि आपके तैयारे कहाँ हैं। अब खेल एक नए और दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। तैयारों या मिसाइलों का नहीं, बल्कि असल जंगी हिकमत अमली का है। आपकी फिजाइया तो है ही झूठी। जब इसमें कुछ होता है तो खबर फौरन हर जगह फैल जाती है। अब अगला कदम आपका क्या होगा? अब तो आप ये सोच रहे होंगे कि ज्यादा से ज्यादा बरमूस मिसाइल निकालें, ज्यादा ड्रोन हमले करें या पाकिस्तान के अंदर हालात खराब करने की कोशिश करें। लेकिन दुनिया अब देख रही है कि असल में मसला क्या है। अब असल खतरा ये है कि दूसरे मुल्क आप पर एतमाद नहीं करेंगे। जब एक बड़ी जंगी फिजाई ताकत राफेल तैयारा ले जाकर हमला करे और फिर तैयारा गिर जाए तो दूसरे मुल्क सोचेंगे कि अगर ऐसा पाकिस्तान में हुआ तो ये तैयारा तो चीन में भी गिर सकता है। और जब ऐसा एतमाद टूटा है तो सिर्फ हथियार नहीं बिकते, पूरा मुल्क अपनी साख खो देता है। अब आपने तस्लीम किया कि तैयारे गिरे, बिल्कुल जैसे हमने अपनी कमजोरियां तस्लीम की थीं। अब आप भी करें। सच को छुपाना खुद अपने आप से धोखा है। लेकिन अगर आप यही रविश अपनाते रहे, सच छुपाते रहे, तो फिर यही होगा कि आपके गले में हाथ डालकर दुनिया वाले सच निकलवाएंगे, जैसा कि ब्लूमबर्ग या अल जजीरा वाले सहाफी कह रहे हैं, जो सच्चाई को पूरी दुनिया के सामने ला रहे हैं। और यही इनकी महारत है। अब खेल किसी सियासी चालाकी से नहीं, बल्कि सच्चाई और दियानतदारी से जीता जा सकता है। और सच का वक्त आ चुका है।